देखो ये मेटाफेज 2 है, देन दिस इज एनाफेज 2 फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सारे जो हैं 4 सेल बन चुके हैं, अब उन चारों सेल के अंदर डीकंडेंसिएशन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है 4 सेल। Hello and very warm welcome to all my lovely Smartians. How are you doing? I really hope you all are good, fit and fine. Today I'll be teaching you a very important chapter, cell cycle and division. The chapter is from class 11th biology and this is an important chapter from NEET point of view. Even the concept of the chapter are used in genetics where we study the replication, genes, chromosomes. So we should be aware of these terms and what they mean, right? So to begin with, let me first know that whether you people know that there is a difference between cell cycle and cell division. The two terms are different and they have a different meaning, right? If you know, pause the video and let me know in the comment section, and if you don't know, then I am here to help you out. See, the two terms cell cycle and division, a layman can use these terms interchangeably, but they are not same, right? Cell division, as the term says, it is the dividing of one parental cell into two daughter cells. So the event that causes division of one cell into two daughter cells like here will be cell division. But cell cycle will refer to all those events that helped in eventually the division of cell into two. So all those events together constitute cell cycle. These events include duplication of the genome or the DNA. Then after duplication there will be equal distribution in the two daughter cells. So all those events together will constitute cell cycle. So cell division can be considered as part of cell cycle, one of the part of the cell cycle. So as I told, cell division refers to the sequence of events by which a cell will duplicate, double its genome, synthesize the cell content, double the organelles and everything, and eventually divides into two daughter cells. That is called cell cycle. So cell cycle includes cell division as well. If I tell you, then cell cycle has got two phases, है ना? सेल साइकिल के दो phases है बेटा. एक है interphase, which is also called the resting phase. One phase is the interphase, and the second phase is cell division itself, or the M phase, the dividing phase, right? Together constitutes the cell cycle. Interphase is also called resting phase. Now why this phase is called resting phase? Not because that the cell is resting, no. The cell is very much metabolically active during this phase. It is actively involved in synthesis of different molecules, but still we call it resting phase because no apparent change can be seen in a cell while it is in the interphase. आप बाहर से कुछ ऐसा चेंज देख नहीं पाओगे, आपको दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, इसलिए हमने रेस्टिंग फेज का है. अपेरेंट चेंज नहीं है, पर अंदर इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि मेटाबॉलिकली ये एक्टिव है. क्लियर? देन एक सेल इंटरफेज में मोर देन 95% ऑफ द होल सेल साइकिल स्पेंड करता है. सो इंटरफेज कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल ऑफ सेल साइकिल. ठीक है, whereas the M phase is the dividing phase. ये क्या होता है? डिवाइडिंग फेज, जब सेल इवेंचुअली डिवाइड करता है दो में. सो डिविजन विल इन्वॉल्व फर्स्ट
the division of the nucleus यानी chromosome का division, and then there will be division of cytoplasm. So M phase constitute further two phase, karyokinesis, karyon means nucleus, kinesis means division, so division of nucleus, followed by cytokinesis, that is division of cytoplasm. A cell spends less than 5% of the cell cycle in the M phase. सबसे ज़्यादा लॉन्ग यही है क्योंकि इस फेज में the cell is preparing itself for the M phase to eventually happen, right? So it is the dividing phase. ये जो होता है ये dividing phase होता है, which consists of karyokinesis means division of nucleus and cytokinesis यानी division of cytoplasm. Then the cell is spending less than 5% of the cell cycle. ये बहुत important है बेटा क्योंकि ये आ भी चुका है नीट में कि कितना परसेंट ऑफ सेल साइकिल इंटरफेज में एक सेल स्पेंड करता है और कितना परसेंट एम फेज में. क्लियर हुआ? इंटरफेज में क्योंकि प्रिपरेशन हो रही है फॉर द एम फेज, सो दैट ऑल्सो अकर फर्दर इन different phases. So interphase consists of three phases, and the three phases are G1, which is gap 1, then there is S phase, and then the G2 phase. I'll be teaching you these phases one by one. So I'll be teaching you these three phases one by one. First is the gap 1 phase of the interphase. तो इंटरफेस की शुरुआत होती है गैप 1 फेज से. यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है आपके बुक में भी क्लियरली बना हुआ है. यहाँ देखिए, अगर आप देखो तो गैप 1 फेज किस किस के बीच में आता है बेटा? G0 तो क्योंकि एग्जिट करेगा तो अभी वो नहीं लेंगे, पर ये M फेज जो पहली वाली सेल साइकिल हुई है उसका M फेज और S फेज के बीच का फेज क्या है? G1 phase, and it is the primary growth phase. ये पहला growth phase है where the cell is metabolically active, where the cell will keep synthesizing the proteins, the enzymes, the nucleotides, everything it needs for the next phase. तो S phase में जो जो चाहिए होगा उसकी प्रिपरेशन यहीं हो जाएगी. साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गैप 1 फेज जो आप प्लीज मार्क कर लो अपनी बुक में कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल विल बी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द गैप 1 फेज. आपकी एनसीईआरटी में जो समरी पार्ट है बेटा वहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन्ड है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आर डुप्लीकेटेड इन द G1 phase. So let's see, it is the first or the primary growth phase. पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं क्योंकि जो पहली वाली माइटोसिस हुई है उसके बाद फिर से जीवन में इफ इट इज डिवाइडिंग. दिस फेज इज बिटवीन एंड ऑफ द एम फेज ऑफ प्रीवियस सेल साइकिल एंड इनिशिएशन ऑफ द एस फेज ऑफ द नेक्स्ट सेल साइकिल. सेल कैसा होगा बेटा? मेटाबॉलिकली एक्टिव. जैसे मैंने बोला कि इंटरफेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव ही रहता है एंड इट विल ग्रो इन साइज. RNA and proteins will be synthesized. Most of the organelle, very very important, summary में underline कीजिए, are synthesized during the G1 phase. It takes maximum of all the stages of the interphase. So interphase में ये longest phase है. एक चीज़ और बेटा, सेल का जो डिसीजन होता है कि वो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा वो भी इसी फेज में लिया जाता है. सो अ सेल इज गोइंग टू डिसाइड दिस इन दिस फेज ओनली वेदर इट वांट्स टू डिवाइड और इट वांट टू एग्जिट. ठीक है, बट इफ इट इज डिवाइडिंग इट विल कंप्लीट द G1 phase and will enter the S phase. S phase refers to synthesis phase because it will involve synthesis or duplication of the
DNA, the genetic material. Now all the enzymes and the factors, machinery needed for DNA synthesis, जैसे कि DNA polymerase, the deoxyribonucleoside triphosphate, DNTPs, वो सब जीवन में synthesize हो जाएंगे, है ना, और तब S phase carry forward होगा. So the next phase is the synthesis phase or the S phase, during which there will be DNA synthesis or we can say the replication of the DNA. अगर DNA replicate करेगा तो the amount of DNA will increase but the chromosome number will remain the same. अब ये कैसे होता है, देखिए DNA की amount for example हम initially let करके चलते हैं कि 2C है, क्योंकि डुप्लीकेशन हुआ तो डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, डबल हो गया है तो 4C, बट क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहता है विच इज 2N, है ना. देखो पहले एक थ्रेड ऑफ डीएनए, एक से आप क्रोमोसोम बनाओगे, सो ईच क्रोमोसोम विल कंसिस्ट ऑफ 1 क्रोमैटिड एंड दैट इज वाई आपकी एनसीईआरटी में एनाफेज में क्लियरली मेंशन्ड है दैट सिस्टर क्रोमैटिड नाउ रेफर्ड टू एज फ्यूचर सेल क्रोमोसोम, है ना. पर जब डुप्लीकेशन हुआ, एक और डीएनए आया, तो नाउ द 2 थ्रेड्स ऑफ डीएनए दे अटैच विद ईच अदर फॉर्मिंग अ एक्स शेप स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं. पहले बिफोर डुप्लीकेशन इसको एक क्रोमोसोम माना जा रहा था, ठीक है, और आफ्टर डुप्लीकेशन इसको एक क्रोमोसोम माना जा रहा है, पर इसमें एक ही डीएनए का स्ट्रैंड था, इसमें 2 डीएनए के स्ट्रैंड है, तो डीएनए का अमाउंट डबल हुआ पर क्रोमोसोम का अमाउंट सेम रहा. सो इनिशियली ये एक क्रोमोसोम था, अब 2 थ्रेड्स मिलकर एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम रहता है बट द डीएनए अमाउंट विल डबल. क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम, और क्रोमोसोम नंबर वैसे भी सेम ही रहना चाहिए क्योंकि प्लॉइडी लेवल अगर चेंज होता है तो that will lead to diseased condition. The ploidy number, the number of chromosome present in a cell should remain same. After the S phase, there will be gap 2 phase. But during this phase, some more things will also synthesize, जैसे centriole का duplication. So in case of animal cell, centriole will also duplicate during this phase इन दी साइटोप्लाज्म. डीएनए का डुप्लीकेशन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में होता है बट सेंट्रियोल विल डुप्लीकेट इन दी साइटोप्लाज्म. ऑल्सो हिस्टोन प्रोटीन्स विल ऑल्सो डुप्लीकेट. हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प इन कॉइलिंग ऑफ द डीएनए, सो उनका भी डुप्लीकेशन इसी फेज में होगा. क्लियर? Then we have the gap 2 phase. So it is the second growth phase. पहला growth phase gap 1 था. This is the second growth phase, also called pre-mitotic phase because after gap 2 there will be again a mitotic phase. इसलिए इसको, क्योंकि माइटोसिस से पहले वाला है, इसलिए क्या बोला है, pre-mitotic gap phase. The cell during this phase is going to synthesize everything that is needed for doing the M phase. The cell prepare itself to enter the mitotic phase. Certain organelles like mitochondria and some more will be synthesized here, but ज़्यादातर organelle कहाँ synthesize हो जाती हैं, gap 1 में ही synthesize हो जाएंगी. The chromosome will condense tightly. RNA, proteins, microtubules will help in spindle formation. वो भी यहाँ पर assemble होने शुरू हो जाएंगे. And during this phase, the DNA will be double the amount, which is 4C, while the chromosome number will still be the same, which is 2N, यानी diploid. Yeah, we are taking the somatic cell, the diploid one, right? This is happening when the cell has decided to divide. What if the cell decides in the G1 phase to not to divide further? Then the cell will not enter the S phase or the G2 phase. फिर वो वहाँ नहीं जाएगा. कहाँ जाएगा? अगर वहाँ नहीं गया तो sometimes
the cell when it decides not to divide further either temporarily or permanently. जैसे heart cell permanently ही decide कर लेते हैं to not to divide further. So instead of entering the further GS or G2 phase, they will enter another phase called the G0 phase, which is the quiescent phase. Some cells pause in the G1 or withdraw from the cell cycle बिफोर द DNA रेप्लिकेशन, क्योंकि अगर DNA रेप्लिकेट हो जाए फिर तो आपको सेल साइकिल करना ही पड़ेगा पूरा कंप्लीट, बिकॉज वन सेल कैन नॉट हैव डबल द अमाउंट ऑफ DNA. Everything in excess will lead to more, double the gene, double the expression, double the protein, and that will lead to a disease condition. So instead of going into the S phase or the G2 phase, it will withdraw itself and enter a resting phase called G0 phase. Again the resting, because apparently you will not see any change, but it will be metabolically active, very active. Example, heart cells that permanently enters this phase, permanently enters G0 phase because they decide not to divide any further. लेकिन अगर डिविजन होगा तो दे विल गो इनटू S phase followed by G2, और G2 के बाद आएगा M phase, the mitotic phase, when the cell will actually divide into the two. और इसको सेल डिविजन बोलते हैं, which consist of first division of nucleus, then there will be division of cytoplasm. Correct? Now let's see how the content of the DNA and the chromosome content changes in different phases of the cell cycle. Starting with the somatic cell, in the G1 phase the DNA content will be 2C and the chromosome number, since it is diploid, 2N. ठीक है? फिर S phase आया, which is synthesis phase, duplication. So chromosome number will remain the same, but the DNA content will double itself. So from 2C it will become 4C. और जो chromosome number है वो अब भी कितना रहेगा? 2N. Why? Because पहले एक strand of DNA क्रोमोसोम था, अब 2 strand मिलकर एक क्रोमोसोम है, right? G2 में यही रहेगा content, which is 4C and 2N. We are going to first study about mitosis, also called equational division. During this division, the chromosome number in the parental cell and the two daughter cells formed will remain the same. That's why it is called equational division. Equal number of chromosome, so it will be 2N only. And of course the chromosome number अगर same तो है क्योंकि equational division है, लेकिन DNA content half होगा ही होगा. One cell cannot have 2 molecules of DNA or double the content. तो 4C से it will again come to 2C. ठीक है? This table will really help you while solving numericals. So make this table, and I hope you have understood how I have doubled everything. S phase से doubling शुरू होती है क्योंकि वो synthesis phase है. G2 में वही रहता है, बट क्योंकि अभी हम माइटोसिस कर रहे हैं तो DNA content तो आधा हो जाएगा, मतलब coming back to the original content, but the chromosome number remain the same. How the chromosome number will remain the same, we'll see. ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोसिस के बारे में. माइटोसिस, as I told, is also called equational division. And why is the name equational division? Because the number of chromosome remains same in the daughter cell and the parental cell. That is why it is called equational division, right? This type of division will increase the number of cell without any change in the genetic makeup. मतलब कोई भी DNA content में change नहीं होगा. पेरेंटल सेल में भी 2C था और डॉटर सेल में भी कितना होगा? 2C ही होगा. ठीक है? Generally this type of division will occur in the vegetative
or the somatic cell. The vegetative cell are the somatic cells of the plant जो कि डिप्लॉयड होते हैं. तो जब भी उनको नंबर में इंक्रीज होना होता है they do it mitotically. Even the haploid cell if they have to increase in number वो mitotically ही increase करेंगे. Mitosis as I told cell division has got two phases. Karyokinesis, karyo means nucleus and kinesis means division. तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिविजन होता है which will help in division of the DNA content. वो जो 4C से ये 2C होगा वो ऐसे ही होगा न्यूक्लियस से. और फिर फाइनली देयर विल बी साइटोप्लाज्म डिविजन which is called as साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो एक सेल दो सेल में देखो यहाँ डिवाइड किया. इधर जो मदर सेल था उसमें दो क्रोमोसोम यू कैन सी, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला, है ना, ये रहे दो. फिर जब ये रेप्लिकेट हुआ तो एक और रेड के साथ स्ट्रैंड बना और एक ग्रीन के साथ स्ट्रैंड बना. पहले रेड वाला अकेला एक स्ट्रैंड एक क्रोमोसोम था, अब दूसरा वाला जब स्ट्रैंड बना तो मिलके एक क्रोमोसोम है. तो क्रोमोसोम नंबर अभी भी क्या है 2n ही है, बट द DNA कंटेंट फ्रॉम 2C चेंज टू 4C. ठीक है, फिर ये डिवाइड हुए. अब डिवीजन कैसे होगी वो आई विल टीच यू. एंड फाइनली डॉटर सेल में भी देखो 2n है, एक रेड एक ग्रीन और इधर भी. सो द क्रोमोसोम नंबर इन बोथ इज सेम. इवन द कंटेंट ऑफ DNA is 2C and 2C. So the quality and the quantity of the DNA and the chromosome is same. Clear? इसलिए इसको माइटोसिस कहते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस which is division of the nucleus. तो आपको ये याद रखना है कि जो सेल साइकिल है वो क्या है, इंटरफेस प्लस एम फेज. ठीक है, ये माइंड मैप आप बनाएंगे. जो इंटरफेज है दैट इज G1 गैप 1 फेज प्लस S फेज प्लस G2 फेज. जो M फेज है दैट कंसिस्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस यानी डिविजन ऑफ न्यूक्लियस बेटा एंड साइटोकाइनेसिस, है ना, डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म. पहले हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस which consist of prophase, metaphase, anaphase and the telophase. एनाफेज के बाद क्या आएगा, टीलोफेज. तो एक एक करके हम ये फेज पढ़ेंगे. उसके बाद आई विल टेल यू साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है. तो सबसे पहले प्रोफेज देखते हैं. अभी एस फेज में क्या हो चुका है, डुप्लीकेशन हो चुका है क्रोमोसोम का या DNA कंटेंट का. तो यहाँ पर पहले देखो न्यूक्लियस का साइज DNA के साइज से बहुत छोटा होता है. तो इतने छोटे न्यूक्लियस में इतने बड़े DNA को रखने के लिए कॉइलिंग की गई. अब क्योंकि एस फेज हो चुका है, DNA का एक और थ्रेड बन गया है तो और ज़्यादा कॉइलिंग होगी और बहुत ज़्यादा कॉइलिंग करके ही दो थ्रेड को उसमें रखा जाएगा. तो यहाँ पर प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय initiation of condensation of chromatin material. Condensation means more tight coiling. तो सबसे पहले क्या होगा, जो chromatin material है which was the loosely coiled mass of DNA and the protein, वो अब condense करेगा क्योंकि now it has got 2 molecules of DNA. ठीक है, forming the X-shaped structure called the chromosome. तो धीरे धीरे वो कंडेंस होगा एंड बाय द एंड ऑफ प्रोफेज या बिगनिंग ऑफ मेटाफेज कंडेंसिएशन जितना हो सकता था वो कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसिएशन. ईच क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेंगे
तो उस एक्स शेप स्ट्रक्चर में बेटा ऐसे होगा, एक थ्रेड ये, एक थ्रेड ये. ईच थ्रेड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड. So each chromosome consists of two coiled sister chromatid, and each chromatid itself is one molecule of double-stranded DNA joined by a centromere. The chromatin fiber becomes shorter and thicker due to the coiling and folding and get condensed into क्रोमोसोम इन द लेट प्रोफेज. तो शुरुआत हो जाती है और प्रोफेज के एंड में आते आते क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट थिक हो जाते हैं इनटू दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमोसोम कहेंगे. एस फेज में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हुए थे. सो ड्यूरिंग द प्रोफेज द टू सेंट्रियोल, द डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल विल बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल. यहाँ पे देखिए जो दो सेंट्रियोल है वो ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं. धीरे धीरे क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है क्रोमोसोम में, एंड दी इफ यू कुड सी हेयर वेरी क्लियरली, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, द ऑर्गेनेल, एवरीथिंग विल स्टार्ट डिसअपियरिंग. सो बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, एंड में यानी लेट प्रोफेज भी आप इसे कह सकते हो, लेट प्रोफेज, Golgi complexes, ER, nucleolus and nuclear envelope will start disappearing. जैसे ही पूरा न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होता है, दैट इज द बिगनिंग ऑफ द मेटाफेज. तो आपकी बुक में फर्स्ट लाइन लिखी है मेटाफेज में कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप marks the beginning of the metaphase. जैसे ही पूरा न्यूक्लियर एनवलप गायब, उसका मतलब किसकी शुरुआत हो गई? मेटाफेज की शुरुआत हो गई. By this stage कंडेंसिएशन, एज आई टोल्ड, जो क्रोमैटिन मटेरियल जो था, जो कंडेंस होना, कॉइल होना शुरू हुआ था, वो प्रोफेज के एंड तक ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो जाता है कंडेंसिएशन. सो बाय द एंड ऑफ प्रोफेज और द बिगनिंग ऑफ मेटाफेज, कंडेंसिएशन ऑफ क्रोमैटिन इज कंप्लीट. ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा, यही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. तो कंडेंसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही कंडेंसिएशन कंप्लीट होगा, देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम दिख रहे हैं. देयर विल बी एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म विच आर कॉल्ड दी क्रोमोसोम. देखो, पहले सिंगल थ्रेड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ठीक है. अब एस फेज में एक और डीएनए का थ्रेड बना और वो दोनों आपस में ज्वाइन हो गए बाय द सेंट्रोमियर टू फॉर्म दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर, नाउ रेफर्ड टू एज क्रोमोसोम. तो इसको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स कॉल्ड एज, इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड, है ना. बट अगर टेक्निकली बात करूं तो एक सिस्टर क्रोमैटिड बेटा किसका बना है? जैसे यहाँ दिख रहा है, ईच सिस्टर क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो वन सिस्टर क्रोमैटिड, ये इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं. दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट कि हर एक सिस्टर क्रोमैटिड आइडियली क्या है? वन मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है. इसलिए हमारा डीएनए अमाउंट बढ़ता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. और ये कहाँ पर जॉइंट है? ये जो जॉइंट है, द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, ठीक है. इस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर. और जैसा आपने अपने सेल चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि सेंट्रोमियर के साइड में देयर आर प्रोटीनेशियस डिस्क called the kinetochore through which, ये यहाँ पर सेंट्रोमियर के दोनों साइड्स में प्रोटीनेशियस डिस्क होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर, टू विच द स्पिंडल फाइबर्स विल जॉइन. स्पिंडल फाइबर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे काइनेटोकोर से, एंड दे विल पुल द टू सिस्टर क्रोमैटिड अपार्ट, राइट. तो मेटाफेज में जो कंडेंसिएशन प्रोफेज में पूरा चला, वो कंप्लीट हो चुका है. जितना डीएनए या क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो सकते थे,
हो चुके हैं and they assume an egg-shaped thick small structures called chromosome, each consisting of 2 sister chromatid, and each chromatid is technically one molecule of double-stranded DNA. क्लियर हुआ? देखो द नंबर सी, क्योंकि इस स्टेज पर मेटाफेज स्टेज पर ही आप ये मॉर्फोलॉजी देख पाओगे कि हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड का बना है और सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। ये बेस्ट स्टेज है जिस पे आपको उसका मॉर्फोलॉजी और नंबर पता लग सकता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि एट विच स्टेज वी कैन डिटरमाइन द नंबर एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी इजीली स्टडीड। मॉर्फोलॉजी मतलब दिस जो आपको बताया कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड, वो यही पता लग रहा है क्योंकि यहाँ इस स्टेज तक पूरा कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब एज यू कैन सी इन द picture that the chromosomes are aligning themselves in the center of the cell। सारे क्रोमोसोम सेल के सेंटर पे आके लग गए हैं, है ना। तो ये जो क्रोमोसोम सेंटर पे लगे हैं, इस सेंटर ऑफ द सेल को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट। सो ऑल आर अरेंजिंग एट द सेंटर एंड द 2 सेंट्रियोल जो ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर गए थे अर्ली प्रोफेज में, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्पिंडल फाइबर विच अटैचेस टू द काइनेटोकोर ऑफ द ईच क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम के साइड, सेंट्रोमियर के साइड में जो काइनेटोकोर डिस्क है उससे अटैच हो गए। सो मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द complete disintegration of nuclear envelope, the morphology can be seen, and the very important characteristic that all the chromosome will align at the center of the cell or the equator. Due to the attachment of spindle fiber at the kinetochore of the sister chromatid, the chromosome will arrange in the सेंटर और इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट ऑफ द सेल। इस प्लेट को क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल। आया समझ में? अब जब सारे क्रोमोसोम सेंटर पे लग चुके हैं, दोनों तरफ के सेंट्रियोल ने काइनेटोकोर से अटैचमेंट कर ली है। नाउ वी हैव टू, सिंस देखो क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल है, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर डीएनए मॉलिक्यूल। तो अब क्या होता है मेटाफेज में, देयर इज डिविजन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। द 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट ऑन द ऑपोजिट पोल। तो हर पोल पे सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए ही आएगा, सो द डीएनए अमाउंट विल हाफ। पर अब जो ये पुलिंग होगी तो each sister chromatid will now be called as the future cell chromosome। जो future daughter cell बनने वाला है उसका वो क्रोमोसोम है। तो अगर एक सेल में 10 क्रोमोसोम थे, वो ऐसे लगेंगे, बीच से डिवाइड होंगे, तो 10 क्रोमैटिड इधर और 10 क्रोमैटिड इस वाले पोल पर। एंड नाउ ईच सिस्टर क्रोमैटिड इज अ क्रोमोसोम, सो 10 क्रोमोसोम 10, इनिशियली दोनों मिलके भी 10 थे, तो क्रोमोसोम नंबर तो वही रहा, बट ये क्या था 4C। अब ये आधे आधे हो गए तो 2C हो जाएंगे। तो आफ्टर मेटाफेज देयर विल बी द शॉर्टेस्ट फेज विच इज कॉल्ड एनाफेज, है ना। एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज होता है सेल साइकिल के एम फेज का। ये देखो यहाँ पर सारे क्रोमोसोम लग चुके हैं। द स्पिंडल विल पुल दी क्रोमैटिड्स टू दी ऑपोजिट पोल। जब ये पुलिंग होगी तो जो सेंट्रोमियर है दैट विल फेस द पोल। देखो जब ये खींचा तो सेंट्रोमियर किसको फेस कर रहा है? पोल को, एंड द आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, ऐसे, ठीक है, ऐसे आर्म्स ट्रेल बिहाइंड करेंगी। कुछ आर्म्स इक्वल आर्म होंगी, कुछ जे शेप्ड होंगी
और कुछ आई शेप भी हो सकती है। सो ये जो शेप होती है क्रोमोसोम की, ये किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अगर मेटासेंट्रिक है तो वी शेप है, एक्रोसेंट्रिक है तो इट विल बी एल शेप्ड, टीलो है तो आई शेप। तो अगर मेटाफेज बेस्ट स्टेज थी नंबर और मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने की, तो इसी तरीके से एनाफेज बेस्ट स्टेज है टू स्टडी द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। अगर क्वेश्चन इस पे आ रहा है कि शेप किस स्टेज पर आप बेस्ट स्टडी कर सकते हैं, तो वो कौन सी स्टेज है? एनाफेज। ठीक है, सो एनाफेज में क्या होगा? द सिस्टर क्रोमैटिड विल सेपरेट। जब सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो सेंट्रोमियर क्या होगा? स्प्लिट। सो एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। ये देखो, यही क्वेश्चन आएगा कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कौन से फेज में होता है? तो माइटोसिस के एनाफेज में। और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो पोल्स पर पहुंच गए हैं विद द सेंट्रोमियर फेसिंग द पोल एंड द आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, वो जो क्या कहलाएंगे? क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। तो जब एस फेज हुआ उसके बाद मेटाफेज में ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स मैंने लिए हैं, ये दोनों एक क्रोमोसोम है। अब जब ये अलग हो गए एनाफेज पर, each sister chromatid itself is now referred to as chromosome। पहले मिलकर एक थे, अब अलग अलग एक हैं, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहा बट डीएनए का अमाउंट आधा हो जाएगा। The shape of the chromosome can be best observed at this phase, whether it is J shaped, V, देखो यहाँ दिख भी रहा है, ये V shape है, ये वाला पर्पल दिस विल बी V shaped proper, मेटासेंट्रिक होगा इसलिए। देन ये वाला आप देखो, दिस इज़ द जे शेप्ड वन, है ना। तो इस स्टेज पर आप बेस्ट क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? शेप को। नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस विच इज़ टीलोफेज। जब क्रोमैटिड्स अपने अपने पोल पर पहुंच गए, नाउ दे विल अगेन डीकंडेंस, है ना। अब फिर से वो डीकंडेंस हो जाएंगे क्योंकि अब फिर से उतना स्पेस अवेलेबल है कि उनको इतनी टाइट कॉइलिंग की ज़रूरत नहीं है। सो दे विल स्टार्ट डीकंडेंसिंग। द सेंट्रियोल हैज़ नो पर्पस नाउ, जो सेपरेशन था उसने करवा दिया है, तो सेंट्रियोल जो है वो फिर डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलाई, ऑर्गेनेल्स दे स्टार्ट अपीयरिंग, रीअपियर हो जाएंगे और दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या रह जाएगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखो यहाँ पर आए पोल्स पर डीकंडेंसिएशन हुआ, वापस से क्रोमैटिन बनना शुरू हो गए, न्यूक्लियर एनवलप सब कुछ वापस आ चुका है। अब साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ही बचा है। सो क्रोमोसोम क्लस्टर एट द ऑपोजिट पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब फिर से ये क्रोमैटिन बन गए हैं। डिसइंटीग्रेशन होगा स्पिंडल फाइबर्स का। द न्यूक्लियर एनवलप विल असेंबल, दोबारा से रीअपियर होगा। न्यूक्लियोलस, गोल्जी, ईआर, एवरीथिंग विल स्टार्ट रीअपियरिंग। तो अब हमने डीएनए का अमाउंट हाफ हाफ कर दिया है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, एक से दो न्यूक्लियस बन गए हैं, सिर्फ अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन बाकी है। एंड जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, द टू डॉटर सेल्स आर रेडी। तो साइटोकाइनेसिस यानी साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, वो प्लांट और एनिमल सेल में दो डिफरेंट वेज से होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, तो इसलिए देयर इज़ अ डिफरेंस इन द साइटोकाइनेसिस ऑफ द टू। ठीक है, एक जो प्लांट सेल है इसके दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, तो साइटोकाइनेसिस विल स्टार्ट विद द वॉल फॉर्मेशन, है ना, वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब वॉल के फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले गोल्जी बॉडी जो पैकेजिंग वगैरह मॉडिफिकेशन एंड ऑल करता है, द गोल्जी बॉडी विल रिलीज द वेसिकल्स दैट विल हैव द cell wall material packed inside it. All the vesicles, as you see in the figure, will arrange at the center, forming a linear structure. They will start fusing.
पहले वेसिकल्स अरेंज होंगे सेंटर पर, जिसको फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। फिर ये वेसिकल्स फ्यूज होंगे। व्हेन दीज वेसिकल फ्यूज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेल प्लेट। ये देखो अभी यहाँ पर ये फ्यूज होंगे, ये बन गई सेल प्लेट, है ना। देन द वेसिकल विल स्टार्ट सिक्रीटिंग ऑन द ईदर साइड द सेल मटीरियल। इधर भी सेल प्लेट के इस तरफ और इस तरफ ये क्या रिलीज करने लगेंगे वेसिकल, सेल वॉल का मटेरियल। जैसे इफ इट इज़ अ प्लांट्स, हायर प्लांट सेल तो सेलुलोज होगा, एल्गे है तो मैनोज, गैलेक्टिन, सेलुलोज, फंजाई होगा तो फिर काइटिन होगा, है ना। तो ऐसे सेल वॉल का मटेरियल रिलीज होगा एंड द सेल प्लेट विल ग्रो फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द पेरिफेरी। जो ग्रोथ है वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होगी, विच मीन्स सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो in the plant cell, wall formation starts in the center of the cell and grows outward meeting the existing wall. So this type of growth is called centrifugal. Center से periphery की तरफ है, away from the center. The formation of the new cell wall begins with the formation of simple precursor which is cell plate that will represent the middle lamella। क्योंकि जब ये सेल प्लेट बनी फिर इधर एक वॉल बनेगी और इधर, तो बीच में दो प्लांट सेल को के बीच में कॉमन वॉल जो होती है उसे क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला। सो मिडिल लैमेला इज द फर्स्ट वॉल लेयर टू बी फॉर्म्ड। सो सेल प्लेट किसे रिसेंबल करेगा, इम्पॉर्टेंटली इसको मेंशन अंडरलाइन कीजिए, मिडिल लैमेला को बिटवीन दी वॉल, और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। करेक्ट। सबसे पहले सेंटर में सारे वेसिकल्स असेंबल हो जाएंगे कंटेनिंग द वॉल मटेरियल। द वेसिकल्स विल फ्यूज फॉर्मिंग द सेल प्लेट विच रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला दैट विल ग्रो फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द periphery, and then on the either side of this cell plate or middle lamella the wall material will be released, dividing the cell into two। ये देखो दो सेल में डिविजन हो जाएगा, फ्यूजन होगा एंड देन इट विल डिवाइड इनटू टू। देखो दो में डिवाइड हो गया। Whereas in animal cell this cytokinesis step takes place by cell furrow formation। वहाँ सेल प्लेट नहीं बनता है, सेल फरो बनता है, और सेल प्लेट सेंटर से पेरिफेरल की तरफ था, सेल फरो देखिए पेरिफेरी से सेंटर की तरफ ग्रो होता है। दे मीट विद ईच अदर एंड पिंचेस ऑफ द सेल इनटू टू। सो इन एनिमल सेल इट इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो in the plasma membrane. The plasma membrane furrow gradually deepens, ultimately joins the center. So from the periphery it will join the center, dividing the cytoplasm into two, जिसको बोलेंगे centripetal development, है ना। तो प्लांट और एनिमल सेल में यही फ़र्क है कि वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होता है साइटोकाइनेसिस में, और यहाँ सेंट्रीपीटल। वहाँ सेल प्लेट फॉर्म होती है, यहाँ पर सेल फरो फॉर्म होता है। करेक्ट। सो अल्टीमेटली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू सेल, चाहे वो प्लांट सेल था या एनिमल सेल था। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर कैरियोकाइनेसिस हो जाए पर साइटोकाइनेसिस ना हो तो क्या होगा। तो अगर कैरियोकाइनेसिस हो यानी न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया बट सेल के साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है ना। तो एक सेल में अभी भी क्या है, दो न्यूक्लियस है। दैट विल लीड टू अ पॉलीप्लॉइड कंडीशन। Poly means many, ploidy means the chromosome number. So this polyploid condition will be called as syncytium as mentioned in your book. So in some organism karyokinesis is not followed by cytokinesis. As a result, multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium, just like the liquid endosperm in the coconut. जो कोकोनट वाटर आप पीते हैं दैट इज़ द लिक्विड एंडोस्पर्म एंड दैट
is polyploid या multinucleate. It is free nuclear endosperm क्योंकि वहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस होता है. ठीक है. So this ends up with the M phase. Mitosis हमने पढ़ा, also called equational division, because at the end of the mitosis the two daughter cell will have same number of chromosome as well as the DNA content will be same 2C 2N. पर इस सेल डिविजन में M फेज में दो फेजेस देखे गए, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस. अब ये जो माइटोसिस है इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इट विल हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सेल, है ना. तो माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, बट हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस शो कर सकते हैं. सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. आपका जब सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, बिकॉज फॉर दैट टाइम इट हैज़ गॉट मोर देन वन DNA इन इट. तो डिविजन हेल्प्स इन रीस्टोरिंग द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, है ना. जो N/C रेशियो बढ़ गया है वो डिवाइड होके फिर से रीस्टोर हो जाएगा. जब आपको इंजरी होती है जैसे स्किन सेल पे एक न्यू स्किन फॉर्म हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो वो भी किसकी वजह से है? सेल डिविजन, माइटोसिस. सो इट हेल्प्स इन सेल रिपेयर. The cells of upper layer of epidermis or the lining of the gut, blood cells, they are constantly being replaced with mitosis. Even in plant cell जो meristematic tissue throughout life divide करते हैं, वो भी कौन सी division से? Mitosis से. The apical, the lateral cambium, they result in continuous growth of the plant throughout their life, and that is also by mitosis. Remember, mitosis प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं करता, और जब भी एक सेल जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो सेल माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड करेगा. अदरवाइज इफ इट अंडरगो मियोसिस तो हर सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर विल रिड्यूस टू हाफ, विच कैन लीड टू डिजीजेस. प्लॉइडी लेवल नहीं बदलना चाहिए. करेक्ट. Now coming to next part of the chapter, which is meiosis. Till now we have seen mitosis as a type of equational division. Now meiosis is a type of special division which reduces the chromosome number by half. What is important to notice here कि इस type of division में जो chromosome number है वो आधा हो जाता है. If the parental cell has chromosome number as 46, है ना, 2n 46 है, तो डॉटर सेल में मियोसिस होने के बाद कितना हो जाएगा? n, which is 23 क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, that ploidy of a species, ploidy refers to the different set of different types of chromosome per cell. The number of set of different types of chromosome per cell is called ploidy. तो किसी भी स्पीशी का जो प्लॉइडी होता है वो कांस्टेंट होता है. जैसे ह्यूमन का प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड, एंड दैट डिप्लॉइड नंबर इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम. अगर प्लॉइडी नंबर डिस्टर्ब होगा, चेंज होगा, वेदर एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कमिंग इन और अ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड, तो इट विल लीड टू अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर. प्लॉइडी नंबर किसी भी स्पीशी का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. अगर हम मियोसिस देखें तो इस केस में प्लॉइडी नंबर डिस्टर्ब हो रहा है, 2n से n हो रहा है, तो फिर मियोसिस होना ही नहीं चाहिए, राइट. तो मियोसिस आपकी बॉडी में रेस्ट्रिक्टेड है ओनली इन द गोनाड्स, दैट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टू प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गेमीट्स, राइट. इसलिए बोला है कि मियोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन है जो स्पेशल
सेल्स में ही होती है हमारी बॉडी में. इट अकर्स इन गेमीट मदर सेल. गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड क्योंकि 2 सच हैप्लॉइड गेमीट अगेन फ्यूजेस टू फॉर्म दी जाइगोट, राइट. और फिर से हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो रीस्टोर हो जाता है. तो मियोसिस क्या है बेटा? रिडक्शनल डिविजन. It will occur in special types of cells called gamete mother cells present in your reproductive organ that will form gametes which will again fuse and restore the chromosome number. Meiosis is also special because it consists of 2 divisions. One is meiosis 1 जिसमें 2 सेल बनेंगे एंड नेक्स्ट इज मियोसिस 2 जिसमें फिर 2 सेल बनेंगे 1 से, तो टोटल 4. जबकि माइटोसिस में आपके पास एक ही डिवीजन होता है जिसमें एट द एंड 2 सेल बनते हैं, बट मियोसिस में एट द एंड 4 सेल बनेंगे. सो मियोसिस 1 विल इन्वॉल्व डीएनए रेप्लिकेशन. इंटरफेज होगा प्रॉपर G1 S G2 जो हमने सीखा. एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा. देन देयर विल बी G2 फॉलोड बाय एम फेज जिसमें कैरियोकाइनेसिस followed by cytokinesis. So cell division. Then the 2 cell will undergo meiosis 2 naturally. तो meiosis 2 meiosis 1 से अलग कैसे है? meiosis 2 में DNA replication नहीं होगा. मियोसिस 2 में न्यूक्लियर और सेल डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस तो होगा बट नो डीएनए रेप्लिकेशन. मतलब यहाँ पर इंटरफेज नहीं होता. एक छोटा सा रेस्टिंग फेज आ सकता है विच इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू 3 G1 S और G2. सो देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन इन मियोसिस 2. ठीक है. Then meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated. As I told you कि meiosis 1 से पहले replication होगा ही होगा to produce sister chromatids at S phase. मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया कि replication से पहले जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का वो अपने आप में एक क्रोमोसोम है, राइट. बट जब रेप्लिकेशन होता है तो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं डीएनए के और 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टुगेदर आर नाउ कॉल्ड एज 1 क्रोमोसोम वेयर ईच मॉलिक्यूल इज रेफर्ड टू एज सिस्टर क्रोमैटिड. तो ये जो नया मॉलिक्यूल बना है वो इसका सिस्टर क्रोमैटिड हो गया. Meiosis will involve pairing. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अब तक माइटोसिस में पेयरिंग नहीं हुआ था. माइटोसिस में मेटाफेज में हमने देखा ऑल द क्रोमोसोम दे अलाइन एट द इक्वेटर और सेंटर ऑफ द सेल वन बिलो द अदर. तो सारे 46 के 46 क्रोमोसोम सेल के सेंटर पे आके अलाइन हो जाते हैं. बट इन केस ऑफ मियोसिस देयर विल बी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा? होमोलोगस, होमो मीन्स सेम, right? So homologous chromosomes are pair of chromosome which are similar in size, shape, set of genes as well as order of gene. अगर क्रोमोसोम 1 और उसका होमोलॉग यानी क्रोमोसोम 1 एंड 1 ये जो पेयर है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है. अब हर होमोलोगस पेयर में ईच ऑफ द क्रोमोसोम इज कंट्रीब्यूटेड बाय मदर एंड फादर. सो वन इज पेरेंटल क्रोमोसोम 1, द अदर इज मैटरनल जो आपको मिला है. ये होमोलोगस है क्योंकि इनका सिमिलर, दे आर सिमिलर इन साइज, शेप, मॉर्फोलॉजी एज वेल एज ऑर्डर ऑफ जीन एंड सेट ऑफ जीन इज सेम. अगर इस क्रोमोसोम 1 पर 20 जीन है तो इस पे भी 20 होंगी और सेट भी सेम होगा. अगर पहली जीन हाइट की है तो यहाँ पे भी पहली जीन हाइट की ही होगी. ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम को होमोलोगस पेयर कहते हैं. तो मियोसिस में इनकी पेयरिंग होगी यानी इस बार इक्वेटर पर 46 क्रोमोसोम अलाइन नहीं होंगे, 23 पेयर अलाइन होंगे, राइट. एंड देन दोज पेयर विल बी सेपरेटेड, दैट विल लीड टू half the number of chromosome. Also they will undergo crossing over. Crossing over involve exchange of genetic material leading to new combination. तो recombination भी होगा उनके बीच में. 4 haploid cells at the end will be formed. Meiosis 2 के, ठीक है. देखिए यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हुए, फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस पेयर
ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा, आपस में ये सिस्टर क्रोमैटिड है, बट होमोलोगस सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो क्या है, नॉन सिस्टर। तो उनके बीच में देखो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, लीडिंग टू रिकॉम्बिनेशन। ओनली वन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड विल पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। तो जब ये क्रॉसिंग ओवर हो गई, नीचे देखो ब्लू और थोड़ा सा रेड, तो एक नया कॉम्बिनेशन। यहाँ पे तो कलर कोडिंग के थ्रू दिखाया है, बट जब ये होता है तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ alleles leading to new combination और फिर ये आपस में सेपरेट होंगे। So if we see for the meiosis, अगर हम meiosis के लिए कंटेंट बनाएं तो कैसे कैसे आएगा। meiosis 1 से पहले प्रॉपर इंटरफेज होगा। G1 फेज में डीएनए कंटेंट हम लेके चलते हैं कितना, 2C, ठीक है, और क्रोमोसोम कंटेंट कितना है, 2N। एस फेज में इट विल डबल, तो 4C है ना, और क्रोमोसोम नंबर अभी भी कितना होगा, 2N, क्योंकि अब दो मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 1 क्रोमोसोम। G2 में भी 4C होगा और ये कितना होगा, 2N। जैसे यहाँ माइटोसिस दिखा है, तो माइटोसिस में हमने किया था कि ये कितना हो जाता है, 2C एंड इट रिमेन 2N। नाउ इफ आई टॉक अबाउट meiosis, तो सबसे पहले बात करते हैं meiosis 1 की, ठीक है। meiosis 1 में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, हाफ, यानी N, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, 23 एक पोल पर, 23 एक पोल पर, और जो डीएनए कंटेंट है वो भी कितना हो जाएगा, 2C। 4C से कितना होगा, ये 2C हो जाएगा, ठीक है। और meiosis 2 में फिर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, क्योंकि अभी जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए। नाउ ईच क्रोमोसोम स्टिल हैज 2 सिस्टर क्रोमैटिड, मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, और एक सेल में डबल अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं हो सकता है, तो उसको जब सेपरेट करेंगे तो 2C विल रिड्यूस टू C एंड N विल रिमेन N, ठीक है। तो meiosis 2 इज मोर और लेस सिमिलर टू माइटोसिस। आया समझ में। देन meiosis 1 पहले हम देखेंगे, जिसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, followed by meiosis 2 with all the phases. Meiosis 2 is similar to mitosis. What is important to understand more is meiosis 1, क्योंकि mitosis आपको आ गया है तो meiosis 2 भी easy है। तो सबसे पहले हम देखेंगे meiosis 1। meiosis 1 जो होता है वो इन्वॉल्व करता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो meiosis 1 में आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक तो यहाँ पर इस meiosis में सबसे बड़ा फेज क्या होगा, प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज 1 is longest, मतलब longer than prophase of mitosis। माइटोसिस के प्रोफेज से भी बड़ा प्रोफेज है, ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग दिस फेज देयर विल बी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। हम देखेंगे कि प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो होमोलोगस क्रोमोसोम विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स विल पेयर, है ना। ये आपकी बॉडी में जो गेमीट मदर सेल हैं गोनाड्स में, उनमें ये meiosis चलता है, तो पेयरिंग होगी। सेकेंडली देयर विल बी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल between non-sister chromatids of homologous chromosome.
homologous chromosome I am writing as HC, which will generate new combination bringing variation. So crossing over क्या लेके आता है बेटा? It brings variation. Brings variation. ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे अगर मेरे पास ये एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, अब ये होमोलोगस पेयर है 1 and 1, ये पहले जो होगा प्रोफेज 1 में हम देखेंगे कि देयर विल बी अ स्टेज जहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम पेयर अप करेंगे। पेयर अप करने के बाद मियोसिस के प्रोफेज 1 में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। तो कुछ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज होगा, जैसे ये पार्ट और ये पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा, राइट। ये इसने ले लिया और ये वाला पार्ट इसने ले लिया, ठीक है। तो अब अगर आप देखो, मेरे पास एक नया कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम्स का बन चुका है। पहले ये पूरा पिंक था, अब कुछ पार्ट ग्रीन कुछ पार्ट पिंक, ऐसे ही ये कुछ पार्ट पिंक है और कुछ ग्रीन है। इसके बाद इन होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा मियोसिस 1 में। तो एक सेल में ये जाएगा, एक सेल में ये जाएगा, बट ईच ऑफ दिस क्रोमोसोम इफ आई ड्रॉ इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट, जिसमें से एक ने अपने आप का क्रॉसिंग ओवर करवाया है। फिर ये जिस भी गेमीट्स में जाएंगे वो जब फ्यूज होंगे तो एक नया कॉम्बिनेशन के साथ होगा। तो इतना ऑफस्प्रिंग्स आपके जैसे और इतना आपसे अलग भी, राइट। सो क्रॉसिंग ओवर क्या लेके आता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस का सोर्स है ना। दैट्स वाई एवोल्यूशनरीली सब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गेमीट फॉर्मेशन होता है और गेमीट का फॉर्मेशन मियोसिस इन्वॉल्व करता है, जिसके फर्स्ट साइकिल फेज में यानी मियोसिस 1 में पेयरिंग होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी जो वेरिएशन लेके आएगा, एंड देन देयर विल ऑल्सो बी सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये सब मियोसिस 1 में होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना। ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे, रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। ये सारे फीचर एक मियोसिस में होते हैं, ठीक है, मियोसिस 1 में। फिर मियोसिस 2 जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा टू दी माइटोसिस। जैसे जब सेपरेशन होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो if I draw देखो, तो जब सेपरेशन हुआ एक पोल पर ऐसे क्रोमोसोम आया जिसमें थोड़ा सा एक्सचेंज था, ये नॉन सिस्टर ने एक्सचेंज किया, इसमें भी। अब फिर मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है सेपरेट हो जाएंगे, जैसा माइटोसिस में होता है।
राइट। सो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है वो लॉन्गेस्ट फेज है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। एंड इट इज सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस। पहला फेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल है, जो एस फेज में डुप्लीकेशन हुआ था, दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पोल्स। सेकेंडली, द कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। जैसे पहले होता था, क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ है तो अभी कॉम्पैक्शन या कंडेंसिएशन होना ज़रूरी है। उसी न्यूक्लियस में अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए रखने हैं, तो इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग एंड विल टेक द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, एक्स शेप स्ट्रक्चर। तो थ्रू आउट लेप्टोटीन ये कॉम्पैक्शन चलता रहता है। द क्रोमोसोम फॉर्म्स लूप वेयर एंड्स आर अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द अटैचमेंट प्लेट फॉर्मिंग अ बुके स्टेज। देखिए, फॉर्मिंग अ बुके स्टेज। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जब कॉम्पैक्शन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर वो सारे क्रोमोसोम्स जो हैं एक पॉइंट से अटैच हो जाते हैं और ये लूप्स बनने लगती है, विच लुक्स लाइक अ बुके अंडर द माइक्रोस्कोप। So all these 3 points are important from need point of view. फिर नेक्स्ट फेज आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं, विच इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो ये पेयर होंगे, पर ये पेयरिंग होने के लिए क्या चाहिए, एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स चाहिए। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयर होना है तो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स चाहिए होंगी जो पेयरिंग में हेल्प करेगी। अगर ये पेयरिंग नेचुरली होती तो माइटोसिस में भी हो जाती, राइट। तो मियोसिस में स्पेसिफिकली अ सेट ऑफ एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड विच हेल्प इन pairing and that brings the 2 homologous chromosome together। तो ये जो मैंने थर्ड वो लगाया है बीच में पिंक कलर का, that is the enzyme complex which is called synaptonemal complex, right। तो ये जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है जो पेयरिंग में हेल्प करता है उसको बोलते हैं this whole structure synaptonemal complex। Pairing of homologous chromosome is called synapses and these paired chromosomes are called bivalents। bivalents क्यों? क्योंकि 2 क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ है इसलिए bivalent, या आप इसको टेट्राड भी कह सकते हो, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं, तो 2 क्रोमोसोम के 4 सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। देखो, 2 रेड 2 ब्लू, तो क्रोमैटिड के नंबर के टर्म्स पे वी कैन कॉल इट एज tetrad, so you can call it even as tetrad, और क्रोमोसोम के नंबर पर you call it as bivalents। Synapsis is accompanied by the formation of a complex tripeptide proteinaceous structure called synaptonemal complex। तो ये जो ट्राइपेटाइड 3 चीज़ों का जो एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इस सेट ऑफ प्रोटीन्स की वजह से जिसने पेयरिंग करवाई, उसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये देखो, यहाँ पर रेड और ब्लू जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है और उसमें जो आप ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन pairing। The number of bivalents in a cell is equal to number of haploid chromosome। very important। आपको इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, क्योंकि हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कह रहे हैं, बाइवेलेंट। तो अगर आपके पास एक सेल में 46 क्रोमोसोम है तो कितने बाइवेलेंट बनेंगे, ईच पेयर विल हैव 2, सो 46 का 23 पेयर। और अगर मैं पूछूं 46 क्रोमोसोम का हैप्लॉइड नंबर क्या होगा, देन इट इज़ 23। सो जो भी आपका हैप्लॉइड नंबर होता है वही नंबर ऑफ बाइवेलेंट है। इतना याद रखिए, बाइवेलेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि इट हैज़ बाय मीन्स 2, so 2 chromosomes, and it is called tetrad because each chromosome is made up of 2 sister chromatid। so total there are 4 chromatid, 2 रेड वाले और 2 ब्लू वाले। नेक्स्ट स्टेज प्रोफेज 1 में आएगी पैकेटीन। अब पेयरिंग हो चुकी है तो अब क्या होना बाकी है, क्रॉसिंग ओवर, यानी दे विल स्टार्ट एक्सचेंजिंग देयर
मटेरियल, है ना, ये आपस में अपना जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वो एक्सचेंज करेंगे, लीडिंग टू क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो होगा वो नेक्स्ट स्टेज में विच इज़ पैकेटिंग, क्योंकि यहाँ से कंडेंसिएशन बेटा शुरू हो गया था। पैकेटिन स्टेज वो स्टेज है जिसपे आपको प्रॉपर टेट्रैड्स देखने को मिलेंगे, यानी प्रॉपर शेप ऑफ क्रोमोसोम। यू कैन सी द 4 क्रोमैटिड्स एट दिस स्टेज। आपका बुक का लाइन है और ये आ चुका है स्टेटमेंट बेस्ड में। The bivalent chromosome become more thick, short and condensed, right? Then the 4 chromatids in a pair of homologous chromosome constitute the tetrad. जैसे मैंने आपको बोला कि bivalent को tetrad chromatid के नंबर पे बोला जा सकता है। Appearance of recombination nodule, the site at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous क्रोमोसोम। तो जो ये एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, ये इसी पॉइंट पे होगा। ये कैसे पता लगता है? तो कुछ नोड्यूलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, जिससे एंजाइम रिकॉम्बिनेस को सिग्नल मिलता है कि उतने पोर्शन पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करवाना है। तो पैकेटिन स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है विच विल लीड टू रिकॉम्बिनेशन, इट्स एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। अगर पेयरिंग एक सेट ऑफ प्रोटीन ने करवाई साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने, तो क्रॉसिंग ओवर भी एक सेट ऑफ एंजाइम करवाएगी विच इज रिकॉम्बिनेस, एंड रिकॉम्बिनेस बाइंड्स टू रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, अ नोड्यूलर लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर एट द रीजन जहाँ क्रॉसिंग ओवर होनी होती है। So crossing over is exchange of genetic material, as I did the exchange. अब ये इतना पिंक है, इतना ग्रीन है, इतना ग्रीन, इतना पिंक, between the two homologous chromosome, enzyme mediated process, and the name of the enzyme is recombinase. Clear हुआ? I really hope आपको ये stages clear हो गए होंगे। अब next stage क्या आएगी बेटा? Now the next stage of prophase 1 is diplotin stage. ये जो stage है ये longest phase है prophase 1 का। पहले तो meiosis 1 के prophase 1 ही longest है। अब उसमें से भी सबसे longest कौन है? डिप्लोटीन। आप याद रखेंगे ये चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दीज पॉइंट्स। सो इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1। इस फेज में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व होगा, क्योंकि अब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है ना, तो पेयरिंग की अब ज़रूरत नहीं है। सो नाउ इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग। जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो दिस पेयर विल सेपरेट, बट सेपरेशन कहाँ नहीं होगा? सिर्फ एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जैसे ये तो डिसॉल्व हो गया, अब ये सेपरेट हुए, सिर्फ जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ पर ये सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। दे विल ओनली बी जॉइंड एट दैट पेयर लीडिंग टू, देख रहे हो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया है। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कियास्मेटा। सो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स so that the recombined homologous chromosome will start separating, जिसको बोलेंगे desynapsis। अगर pairing synapses है तो उनका separation desynapsis होगा। They will remain attached to one or more point where crossing over has occurred। separation तो होगा, but जहाँ पर crossing over हुई थी वहाँ पर ये attached रहेंगे, जैसे ये है ना, तो they are attached at the point of crossing over. These point of attachment called as chiasmata, X-shaped structure, जैसा आप देख रहे हो, in will be formed। अब जो डिप्लोटीन स्टेज है वो लॉन्गेस्ट क्यों है? जैसे कुछ वर्टिब्रेट्स के उस साइड में ये स्टेज मंथ्स और ईयर्स तक भी रह सकती है। If you know, then in case of human female, जो oogenesis का प्रोसेस है, यानी गेमिटोजेनेसिस का प्रोसेस, वो फीटस स्टेज में ही हो जाता है, यानी जब एक गर्ल मदर की बॉडी के अंदर होती है, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी oocyte। पर ये जो oocyte है जिसने meiosis 1 अपना शुरू किया है, वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। सो फ्रॉम द बर्थ ऑफ द फीमेल टिल द प्यूबर्टी,
all the primary oocytes within the primary follicle in the ovary are arrested at diplotene stage. अगर हम देखें तो प्यूबर्टी अराउंड 12 to 13 ईयर्स पे हिट करेगी, तो वो 13 ईयर तक जितने भी प्राइमरी oocyte है वो meiosis 1 की किस स्टेज पर अरेस्टेड है? डिप्लोटीन स्टेज पर. एंड देन at the puberty, when the hormones, the GnRH, gonadotrophin releasing hormone, यानी आपके LH और FSH फिर जब आते हैं बॉडी में, तब इनका maturation stimulate होता है, यानी they continue their cycle. So in oocyte, एक तो ये important है, and then some, not all vertebrate, some vertebrate, diplotene stage can last for months or years, just like the primary oocyte in the human female is arrested in diplotene stage from birth till puberty. The suspended diplotene stage is also called dictyotene stage. तो ये जो रुकी हुई pause diplotene stage है, इसको dictyotene कहते हैं. And there is during this stage terminalization of chiasmata also start. फिर ये chiasmata भी जो है धीरे धीरे terminalize यानी dissolve होने लगता है. By the starting of the next phase, the terminalization is complete. ये जो टर्मिनलाइजेशन इज कंप्लीट, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर थे ये अब अलग हो जाते हैं विद अ न्यू कॉम्बिनेशन, जैसे कि पिंक और ग्रीन एंड पिंक एंड ग्रीन हेयर. सो टर्मिनलाइजेशन इज कंप्लीट. द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, दे स्टार्ट डिसअपियरिंग, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट फॉर्मिंग फ्रॉम द सेंट्रियोल दैट हैव रीच्ड द पोल. तो वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स जो है फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. एस्ट्रल रेज इन केस ऑफ एनिमल सेल दे बिकम फुल्ली डेवलप्ड. प्लांट सेल में एस्टर रेज नहीं बनती है. दिस मार्क्स द एंड ऑफ द प्रोफेज 1. तो जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, एस्ट्रल रेज बन जाएंगी, प्रोफेज 1 इज कंप्लीट. एंड देन देयर विल बी स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट फेज विच इज मेटाफेज 1. तो पहले प्रोफेज 1 देखिए, जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल है दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल, है ना. जो क्रोमोसोम कंडेंसिएशन लेप्टोटीन से शुरू हुआ प्रोफेज तक ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा. पेयरिंग होगी, स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाएगा. उसके बाद आएगा मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 में जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो अलाइन करेंगे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. सो इस बार इक्वेटर पे क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम अलाइन नहीं होने वाले, पेयर अलाइन होंगे. ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कैन बी कॉल्ड एज अ बाइवेलेंट और अ टेट्रैड. तो 46 क्रोमोसोम के पेयर बनाएंगे तो 23 बाइवेलेंट्स विल अरेंज ऑन द इक्वेटर. The microtubule from the opposite pole of the spindle will attach to the kinetochore of the homologous chromosome. इस बार जो आपके homologous pair है वो सेंटर पे आ गया है, करेक्ट, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द इक्वेटर. और जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे अटैच हो रहा है इस बार? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से. एक इधर और एक इधर, सिस्टर क्रोमैटिड से अटैचमेंट नहीं होगा. ठीक है, देखो द बाइवेलेंट्स दे कम एट द इक्वेटर, एक पर्पल एक ब्लू, और ब्लू वाला कुछ एक्सचेंज भी हो चुका है मटेरियल, ये अलाइन हो गए हैं. ठीक है, देन एनाफेज 1 आएगा विच इज शॉर्टेस्ट. जो होमोलोगस पेयर हैं वो सेपरेट. देन देयर विल बी एनाफेज जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, पर सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगे सेंट्रोमियर पे. तो एनाफेज 1 में नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है नीट में कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कौन सी स्टेजेस डिवीजन में होती है. तो एक तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस और एक एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2. एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो सकता क्योंकि जो स्पिंडल है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़ा है. तो ये दोनों आपस में जो आपके थे होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेपरेट हो रहे हैं.
or each is still having two sister chromatids attached at its centromere. टेलोफेज में वापस से फिर डीकंडेंसिएशन होगा and the nuclear membrane, nucleolus, everything will reappear followed by cytokinesis. अगर एनिमल सेल है तो फरो फॉर्मेशन और प्लांट सेल है तो सेल प्लेट के थ्रू जो सेंटर से शुरू होगी पेरिफेरल पे जाएगी जैसा हमने पहले देखा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स. तो ये मेटाफेज 1 है, पेयर्ड क्रोमोसोम अलाइन हो गए सेंटर पर, सेंट्रोमियर नॉन सिस्टर से अटैच हुआ. उसके बाद आएगा एनाफेज 1 जहाँ पे होमोलोगस पेयर आर सेपरेटिंग. सो इंस्टेड ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड इट इज़ द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो सेपरेट हो रहे हैं. नो स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर. देन देयर विल बी टीलोफेज जिसमें सब कुछ फिर से रीअपियर होगा. अब जो दो सेल बने वो दो सेल या तो डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे मियोसिस 2 में या फिर देयर विल बी एन इंटरविनिंग स्टेज, अ वेरी शॉर्ट रेस्टिंग फेज, बट उस रेस्टिंग फेज में नो डीएनए रेप्लिकेशन विल अकर. मियोसिस 2 क्यों करना पड़ा? क्योंकि अभी भी जो क्रोमोसोम है, ईच ऑफ द क्रोमोसोम हैज़ गॉट टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना. अभी भी हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं एंड ईच क्रोमैटिड अगर हम देखें इज़ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो डीएनए तो ऑलरेडी हमारे पास एक्स्ट्रा है जिसको सेपरेट करने के लिए ही हम मियोसिस 2 कर रहे हैं क्योंकि एक सेल में दो डीएनए नहीं रह सकते. तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन अभी इंटरकाइनेसिस में नहीं चाहिए. द स्टेज बिटवीन टू meiotic डिविजन इज कॉल्ड interkinesis and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis. तो ये छोटा सा सिर्फ रेस्टिंग फेज ही है, कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी दो दो मॉलिक्यूल हैं डीएनए के. और फिर ये शुरू होगा, राइट. सो फर्स्ट वील हैव प्रोफेज 2 जिसमें कंडेंसिएशन होगा, फिर से न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, सम ऑफ द ऑर्गेनल्स विल डिसअपियर. फिर उसके बाद देयर विल बी मेटाफेज 2 जहाँ पर ऑल द क्रोमोसोम विल अलाइन एट द इक्वेटर. सो मेटाफेज 2 में द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर. तो इस बार इक्वेटर पे क्रोमोसोम अलाइन होंगे ना कि ना होमोलोगस क्रोमोसोम. और जो स्पिंडल है वो किससे अटैच होगा इस बार? इट विल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड, है ना. तो सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे जब अलाइन होंगे, मतलब 23 क्रोमोसोम, नॉट 46 क्योंकि 46 का आधा हो चुका है. तो 23 क्रोमोसोम अलाइन होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड से स्पिंडल अटैच होगा. द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, जबकि मेटाफेज 1 में इट वॉज अटैच टू द नॉन सिस्टर. फिर एनाफेज 2 होगा विच विल बी स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर फ्रॉम द सेंटर, सेपरेटिंग द सिस्टर क्रोमैटिड. सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन का मतलब क्या है बेटा? कि डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है सेपरेट हो गए हैं, यानी 2C से C हो गया. इट बिगिन्स विथ साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर. तो जैसा एनाफेज ऑफ माइटोसिस में होता था बिल्कुल वैसा, होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर, allowing them to move towards the opposite pole of the cell, shortening the microtubule. Then telophase 2, meiosis ends with telophase 2 in which the two group of chromosome again they decondense to form the chromatin enclosed by the nuclear envelope. फिर से एक cytokinesis होगा, cell furrow और cell plate depending upon it is animal or plant cell respectively, leading to the formation of 4 haploid cell. So by the end of telophase 2 and the cytokinesis 4 सेल होंगे और चारों सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या हो चुका है? हाफ. ठीक है, 23 एंड द कंटेंट ऑफ डीएनए इफ वी हैव स्टार्टेड विथ C इट इज़ नाउ C, राइट. क्योंकि आपने 2C से शुरू किया था, 4C, देन इट इज़ 2C इन द मियोसिस 1 और फिर C हो गया किस में? मियोसिस 2 में. देखो ये मेटाफेज 2 है. Then this is anaphase 2 followed by
साइटोकाइनेसिस, सारे जो हैं 4 सेल बन चुके हैं, अब उन चारों सेल के अंदर डीकंडेंसिएशन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, 4 सेल बन के आ चुके हैं. So this type of cell division is called meiosis. Meiosis is restricted to your gonads यानी गेमीट मदर सेल में ही होगा क्योंकि ये प्लॉइडी का नंबर हाफ कर देता है. एंड देन दिस टाइप ऑफ डिविजन कैन ओनली बी सीन देन इन गैमीट्स क्योंकि गेमीट्स का हैप्लॉइड होना ज़रूरी है. द 2 gametes combined during fertilization restore the number. So meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved. ये जो आपके बुक में लाइन लिखी है कि कंजर्वेशन हुआ है, ये किस रिस्पेक्ट में लिखा है कि अगर मियोसिस नहीं होता और गेमीट माइटोसिस से बन जाता तो फर्टिलाइजेशन के बाद नंबर डबल हो जाता, 46 92 हो जाते, तो फिर आपका क्रोमोसोम नंबर कंजर्व नहीं रहता. एक स्पीशी का क्रोमोसोम नंबर कंजर्व्ड होता है अक्रॉस जनरेशन. सो इट हेल्प इन मेंटेनिंग द क्रोमोसोम number across generation in sexually reproducing organism even though the process per se paradoxically result in reduction. जैसा आपके दिमाग में भी ये आया होगा पढ़ते हुए कि मेयोसिस में तो रिडक्शन हो गया, फिर कैसे क्रोमोसोम नंबर प्रिजर्व हुआ? तो रिडक्शन की वजह से क्रोमोसोम नंबर अगली जनरेशन में प्रिजर्व हो गया जब फर्टिलाइजेशन हुआ. अगर गेमीट मेयोसिस करता ही नहीं बनने के लिए तो फिर it is mitosis and then the chromosome number would have been doubled. It also increases variations, very important क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है in the population from one generation to the next. और वेरिएशन लॉन्ग टर्म में एवोल्यूशन या स्पेसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हर जनरेशन में जो वेरिएशंस, न्यू कॉम्बिनेशंस आते हैं वो एक लॉन्ग टर्म में मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद स्पेसिएशन यानी न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन भी करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट meiosis and mitosis in detail. I really hope you have understood the whole chapter correctly and now you will be able to solve the questions on the chromosome number, DNA content, especially जो मैंने आपको टेबल दी उस टेबल को बना लो क्वेश्चन आए तो, और उसमें फिर वैल्यूज पुट करो, you will get your answers. If you still have any doubt at any point in the chapter, please let me know in the comment section. Stay tuned to our channel for more videos of different subjects and do like, share and subscribe to our channel if you are new. Till then, goodbye, stay happy.